عزیز دوستو، محترم ناظرین، حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں اس دن کے لیے، اس نئے ہفتے کے لیے، اس لمحے کے لیے کہ خداوند نے مجھے عطا فرمایا تاکہ میں خداوند کے حضور آ کر سر بسجدہ رہوں اور خداوند کی شکر گزاری کر سکوں۔ وہ شفیق خداوند ہے، وہ دل سوز خداوند ہے، رحم سے بھرا، کیونکہ آج اس نے مجھے پھر ایک موقع عطا فرمایا تاکہ میں اس کے حضور آ سکوں، سر بسجدہ ہو کر کہوں ممنون ہوں میں تیرا اے خداوند۔ جب ہم اپنی چاروں طرف دیکھتے ہیں، اپنی دنیا کو دیکھتے ہیں، تو ہماری دنیا جو ہے وہ ایک نابسامانی، ایک جھنجٹ میں، ایک کشمکش میں مبتلا ہے۔ افغانستان کے حالات کو دیکھیں، جہاں طالبان کے اب اگست سے لے کر اب تک تقریباً 6 مہینے ہوئے، مگر وہاں کے لوگ نالاں ہیں۔ بہت سے افغان باشندے جو ہیں وہ دوسرے ممالک میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ پاکستان میں تو پہلے ہی سے بہت سے افغانوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ 40 سال اس جنگ میں، اس جدال میں، جو لوگ 1980 میں پیدا ہوئے تھے یا 89 میں یا پھر 90 کی دہائی میں، وہ سب نوجوان ہیں، جوان ہیں۔ ان میں سے بعض نے شادیاں کی ہوئی ہیں اور ان کے اپنے بیٹے، یہاں تک کہ ان کے بیٹوں کے بھی اولاد ہیں۔ ایک نسل نہیں، 2 نسل متواتر جنگ میں مبتلا ہیں، نفرتوں میں، چپقلش میں، مذہبی اور دینی جنگوں میں، نژادی نسلی جنگوں میں افغانستان مبتلا ہے۔ یہ ایک مرض ہے جسے کتاب مقدس میں ہم گناہ کے نام سے جانتے ہیں۔ سب سے عظیم مرض، بیماری، وہ انسان کے لیے گناہ ہے۔ گناہ ہی کی وجہ سے ہر چیز لعنت کے نیچے ہے۔ حیوانات کو دیکھیں، انہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، مگر انسان کی وجہ سے وہ لعنت کے نیچے ہیں۔ پہاڑوں کو دیکھیں اور سب چیزوں کو دیکھیں، طبیعت میں جتنی بھی آفتیں آتی ہیں، زلزلے ہیں، بھونچال ہیں، طوفانیں ہیں، سائیکلون وغیرہ، سارے کے سارے اس وجہ سے ہیں کہ انسان نے اپنے خالق کے خلاف گناہ کیا، کیونکہ خالق نے اس دھرتی کو انسان کے مسکن کے لیے بنایا تھا۔ ہم نے اپنے مسکن کو، اپنے گھر کو اجاڑ کر رکھ دیا ایک گناہ کی وجہ سے، کہ ہم نے خدا کے خلاف بغاوت کی، نافرمان رہے۔ ہمارے پہلے ماں باپ، ماتا پتا، فادر اینڈ مدر، مادر و پدر، پلار او زموج مور، انہوں نے خداوند کے خلاف گناہ کیا۔ خداوند نے جس چیز سے انہیں منع کیا تھا وہ کیا۔ ہم حسابدار ہیں اپنے خالق کے حضور، ہمیں حساب دہی کرنی ہے، چاہے اب چاہے آگے جا کر۔ خداوند شفیق، حالانکہ ہم اس کے قوانین کے خلاف، اوامر کے خلاف، ان کے وصایا کے خلاف ہم جاتے ہیں، پھر بھی وہ اپنی شفقت کو ہم پر ڈالتا ہے، ہم پر دل سوزی سے وہ آتا ہے۔ وہ دل سوز ہے، اس کا دل جو ہے وہ جلتا ہے ہمارے لیے، اس کا دل جو ہے وہ جلتا ہے ہمارے لیے۔ وہ ایک گیت ہے، بہت پرانی گیت ہے،
बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा। आपने सुना होगा, दिल जलता है तो जलने दे। ये है हमारी जो एटीट्यूड या हमारा रवैया हर चीज के लिए। मगर खुदा का दिल वो जलता रहता है हमारे लिए कि कब हम लौटेंगे। और हम शायद इसी गीत की तरह कहते हैं कि खुदा का दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा, फरियाद न कर। खुदावन आंसू भी बहाता है और वो फरियाद भी करता है। और इस फरियाद में खुदावन अपने आगोश को खोल कर कहता है, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, ऐ मेहनत उठाने वालों, जहमत उठाने वालों, गुनाह के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम और आसाइश बख्शूंगा, मैं तुम्हें आसाइश बख्शूंगा। वो नरम दिल खुदावन, वो दिल सोस खुदावन, शफीक खुदावन आज भी हमें बुलाता है। यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। यीशु मुझे बुला रहा है आज भी, और मुझे चाहिए कि मैं उसके पीछे पीछे जाऊं, क्योंकि उसके पीछे जाने ही से मेरी भलाई है। खुदावन को ताकीब करना, खुदावन के पीछे चलना ही मेरी भलाई के लिए है, क्योंकि वो मेरे लिए हर खूबी का ख्वाहा है। हालांकि कभी कभार मैं इसे नजरअंदाज कर देता हूं, मगर उसकी नजरें जो है हमेशा मुझ पर टिकी हुई है। उसकी शफकत मुझे बुलाता है अपने पास, उसकी रहमत मुझे इजाजत देता है एक और दिन मैं नफस हयात रख सकूं। उसकी जो मोहब्बत है, प्रेम है, वो मुझे अपने गले लगाता है, अपने गले लगाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर सारी दुनिया हमें धक्का दे, नजरअंदाज करे, नजरों से गिराए, मगर खुदाबंद ये नहीं करता। वो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला खुदाबंद है। आखिर तक वो हमारा पीछा करता रहेगा ताकि हम तौबा करें। अगर हम तौबा ना करें तो हम उसके घर में दाखिल नहीं हो सकेंगे, दाखिल नहीं हो सकेंगे। इंसान की ये हालत है। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तू ऐ मसीह है मेहरबान, अपने गले लगा लिया। देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं, देखा गया नाप से कि मैं गुनाह में मरूं। मेरी नजात के लिए खूने जिगर बहा दिया। सबने गुनाहगार को नजरों से जब गिरा दिया, तूने मसीह मेहरबान अपने गले लगा लिया। क्या किसी ने
آپ کو اپنی نظروں سے نظر انداز کیا ہے؟ آپ کے فیملی ممبرز شاید ہوں، آپ کے اپنے گھرانے اور بہترین دوست، یا بہت سے لوگ جن کے ساتھ آپ کھیل کود کر بڑے ہوئے، یا جس پر آپ کا پورا اعتماد تھا، مگر انہوں نے آپ کو نظروں سے گرا دیا۔ مگر مسیح وہ ہے، خداوند وہ ہے جو ہمیشہ اس کی نظریں آپ پر ٹکی ہوئی ہیں، اس کا اشتیاق آپ پر ہے، مجھ پر ہے، مجھ گنہگار پر ہے۔ وہ کبھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتا، حالانکہ اگر میں اس کا پیچھا چھوڑوں تو بھی وہ میرا پیچھا کرتا رہے گا تاکہ میں نجات پاؤں۔ یہ ہے میرا خدا۔ یونس نبی کی زندگی میں بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ یونس خدا سے بھاگتا رہا۔ یونس نے خدا کا پیچھا چھوڑنا بند کیا، مگر خدا نے اس کا پیچھا کرتا رہا یہاں تک کہ سمندر کے عمق تک، جب اس نے ایک ماہی کو، ایک مچھلی کو مقرر کیا، عظیم الجثہ مچھلی کو مقرر کیا، جس کے پیٹ میں یونس رہا کچھ دنوں کے لیے، 3 رات اور دن مچھلی کے پیٹ میں۔ وہاں پر بھی خداوند نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا، وہاں پر بھی اس کی محافظت کی۔ جب اس نے خدا کے حضور دعا کیا، توبہ کی، اور مچھلی نے اسے پھینک دیا سمندر کے کنارے، اور یونس بھاگا بھاگا نینوا شہر کو گیا، ایک پورے دن کا چکر لگاتے ہوئے لوگوں پر غصہ کر کے، دیکھو 40 دن میں تم سب مر جاؤ گے، تمہارا دن ختم ہونے والا ہے۔ ان کو توبے کے لیے خداوند کے حضور گڑ گڑانے کے لیے کچھ نہیں کہا۔ یہ ہے ہماری حیثیت، ہم انسان ہیں، چاہے آپ نبی ہیں، چاہے آپ پیغمبر ہیں، چاہے آپ اپنے آپ کو بہت ہی غنی اور بہت ہی اچھا اور شفیق انسان مانتے ہیں، مگر ہماری حیثیت بالکل یہی ہے۔ جس چیز کو ہم نہیں چاہتے، جس پلان کو ہم نہیں چاہتے، اور اگر خداوند ان پر شفیق ہوتا ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے۔ یونس نبی کی حالت بھی کچھ یوں ہی ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ حالانکہ اس نے توبہ کرنے کے لیے لوگوں کو نہیں کہا، مگر پھر بھی نینوا کے لوگ وہ ڈر گئے خداوند سے، خداوند کے غضب و قہر سے ڈر گئے، اور وہ خداوند کی طرف لوٹنے کے لیے ٹاٹ اوڑے، خاک بر سر کر کے، یہاں تک کہ بادشاہ نے کہا کسی نے کچھ کھانا پینا نہیں ہے، سب نے روزے رکھنا ہے تاکہ ہم بچ جائیں، تاکہ شاید خداوند ہم پر شفیق بنے، دل سوز بنے، رحم فرمائے اور ہم بچ جائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ مگر یونس کی حالت کیا ہے؟ یونس نے کیا کیا؟ کیا یونس سدھر گئے؟ اب دیکھیں، کیا یونس سدھر گئے؟ اور یونس نے کیا کیا؟ حالانکہ اس نے سب کچھ خداوند کی طرف سے دیکھا، سب کچھ ان کے لیے واضح تھا کہ خداوند نے اس کو ایک ماموریت کے لیے، ایک وظیفے کے لیے، فرض کے لیے بھیجا ہے، تاکہ نینوا کے لوگوں کو بتائے کہ وہ بچ جائیں۔ اور پھر جب وہ بچ گئے، یونس کو غصہ آیا، بہت ہی زیادہ غصہ آیا، اور اس نے تو یہاں تک کہنے لگا کہ بھائی میں جانتا تھا کہ تو کیسا خداوند ہے، میں جانتا تھا کہ تو کیسا خداوند۔ یہ ہماری حیثیت ہے، انسان کی جو ایٹیٹیوڈ، ہمارا رویہ دوسروں کے لیے ایسا ہی ہے۔ چاہے وہ سیاسی میدان ہو، ہم ایک دوسرے کو تھپڑ مارتے رہتے ہیں، گالی گلوچ دیتے رہتے ہیں، برا بھلا کہتے رہتے ہیں، ہاں آمنے سامنے آ کر بھائی خوشل منگل کے لیے کچھ باتیں کرتے ہیں، اور پیچھے جا کر پھر بھی
ہمارا رویہ ویسا ہی رہتا ہے۔ ایک بار میں نے ایک کارٹون دیکھا تھا ایک اخبار میں کہ لوگ کیسے ملنسار ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک ہاتھ سے وہ گلے لگاتے ہیں تو دوسرے ہاتھ میں چھرے، دونوں کے ہاتھوں میں چھرے ہیں۔ انسان کی حیثیت بالکل یہی ہے، مگر ایک قلب، ایک دل، ایک انسان جو توبہ کرتا ہے اپنے گناہوں سے، جو خداوند کو حاضر و ناظر مانتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی ہے، میری زندگی سے بڑا کچھ پلان ہے خدا کے سامنے، ایک موضوع ہے، میں ایک انسان نہیں جسے خداوند نے بلایا، میں اس کا نبی ہوں، میں اس کا پاسٹر ہوں، میں اس کا ایوانجلسٹ ہوں، کوئی اور بھی ہے جسے خداوند چاہتا ہے۔ ایسی ہی حالت ہم دیکھتے ہیں ایلیجا کی زندگی میں، الیاس کی زندگی میں۔ الیاس نے بھی کچھ ایسا ہی کیا۔ الیاس بہت عظیم نبی گزرے ہیں، اور جب وہ تھکے ماندے ہو کر اپنی زندگی میں، اور پھر اس نے خداوند سے کہا بس میں اپنے باپ داداؤں سے زیادہ نہیں، مجھے بھی ختم کر، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، میں یہاں سے جانا چاہتا ہوں، مجھے بھی مار ڈال، میں مرنا چاہتا ہوں۔ اور خداوند نے اسے دکھایا، تو کیا سمجھتا ہے کہ تو اکیلا ہے میری عبادت کرنے، میرا عابد، میرا اکیلا عابد ہے؟ دیکھ ہزاروں کا لشکر میں، دیکھ یہ ہے میرے عابدین، ان کا نام کتاب مقدس میں بھی نہیں، مگر یونس کا نام ہے، مگر یونس کا نام ہے، مگر الیاس کا نام ہے، جنہوں نے موت مانگی خداوند سے کہ بس تو ایسا کرتا ہے، میں تو سوچتا تھا تو ایسا خدا ہے، تو ایسا بھی کرتا ہے، بس مجھے مار ڈال۔ اور خداوند کہتا ہے ہزاروں کی تعداد میں وہ ہیں جو میری پرستش کرتے ہیں، جو میرے عابد ہیں، سچے عابد ہیں، ان کا نام بھی میں گمنام رکھنا چاہتا ہوں، وہ اتنے عظیم عابد ہیں۔ کبھی کبھار ہم ایسے ہی سوچتے ہیں کہ بھائی میرا ایک بڑا نام ہے، میری ایک بڑی منسٹری ہے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں وغیرہ کر کے ہم بھول جاتے ہیں کہ ایسے خداوند کے خادم ہیں جو بالکل گمنام ہیں، اور خداوند کے حضور وہ بہت ہی عظیم ہیں۔ ہمیں سوچنی چاہیے کہ ہم کون ہیں، گریباں میں جھانک کر دیکھنی چاہیے ہمیشہ کہ ہم کون ہیں۔ آئیے ہم یونس نبی کی کتاب میں سے اس کے 4 باب میں سے پڑھیں گے کہ خداوند ہمارے لیے کیا درس دیتا ہے اپنے مقدس کلام سے۔ یونا کی ناراضگی، یونس نبی کی ناراضگی اور خدا کا رحم۔ ہم ناراض ہوتے ہیں مگر خداوند رحیم ہے ہم پر۔ لیکن یونا اس سے نہایت ناخوش ہوا، کیونکہ ننوا کے لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے گناہوں سے معافی مانگی اور وہ بچ گئے، اور یونا کو بہت زیادہ غصہ آیا، بہت زیادہ غصہ آیا۔ اس کے غصے کی حد کو آپ یہاں ان آیات میں غور کریں۔ لیکن یونا اس سے بہت ناخوش ہوا اور ناراض ہوا، اور اس نے خداوند سے یوں دعا کی بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ بد دعا ہے، دعا نہیں بد دعا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، یہ ہمارے لیے درس ہے۔ کیا ہم بھی یونس کی مانند ہیں؟ کیا ہم بس اپنے ہی فرقے کے لوگوں کو، اپنے ہی نسل کے لوگوں کو، اگر آپ سندھی ہیں بس میں امید کرتا ہوں کہ سندھی بچ جائیں، بس پنجابی ان سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، یا پنجابی کہیں جو سرائکی بولنے والے لوگ ہیں ان سے میرا لینا دینا ہے ہی نہیں، وہ تو ہیں ہی بیچ میں، نہ وہ سندھی ہیں نہ پنجابی ہیں، بس پنجابیوں کے بیچ میں نے پرچار کرنا ہے، میرے گیت پنجابی ہوں گے، میری پرچار پنجابی ہوگی، میرا رویہ، میرا کلچر سب کچھ پنجابی ہوگی۔ یا پھر پٹھان یہ کہے زخو پٹھانیم زخو پختونیم، مونگ د خیبر زلمی پختو زمونگ شان دے، مونگ پختنیو پا وطن زان قربان دے۔ بس اپنی غیرت کی للکار لے کر کہ ہم کون ہیں۔ باقی کو میں نے کچھ
ध्यान नहीं देना है। बस मैं पश्तून हूं, मैं पठान हूं। भाई आपने सुना नहीं, फिल्मों में भी मेरा नाम बहुत बड़ा है और तारीख में भी बहुत ज़्यादा बड़ा नाम है मेरा। फिल्मों में कई पाले खान हुआ तो कई ये खान हुआ, वो खान हुआ, मैं पठान हूं। दूसरों का मैंने क्या करना है? ये है हमारी एटीट्यूड। यूनुस की एटीट्यूड भी, जो उसका रवैया है वो बिल्कुल ऐसा है। भाई निनवा के लोग वो तो इस्राएली नहीं है, वो तो यहूदी नहीं है, वो तो खुदा के लोग नहीं है। खुदा ने जरूर मुझे यहां पर भेजा होगा कि बस मैं उनको ये इतना बता दूं कि आज तुम्हारी कहानी खत्म दुनिया से, तुम्हारी कहानी बिल्कुल खत्म, 40 दिन के अंदर अंदर तुम खलास। उनके वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि खुदावंद रहीम है, खुदावंद शफीक है, खुदावंद मोहब्बत रखने वाला है। वो हमारे जैसे इंसानों की जैसे नहीं सोचता। उसकी सोच जो है हमारी सोच से बालातर और अजीम तर है। वो इतना शफीक खुदावंद है क्योंकि दुनिया के लोगों से खुदावंद ने ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इसमें यह नहीं लिखा हुआ क्योंकि खुदा ने पंजाबियों से ऐसी मोहब्बत रखी, या सिंधियों से, या पठानों से, या हजारा लोगों से, या हिंदुओं से, या बुद्ध मत के मानने वालों से, या मुसलमानों से, या मसीहियों से ऐसी मोहब्बत रखी। ऐसा नहीं लिखा है। क्योंकि खुदा ने दुनिया के लोगों से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ता जो कोई इनमें से जो कोई ईमान लाए वो हलाक न हो बल्कि अबदी जिंदगी पाए। खुदावन का दिल फराख है, वो दिल फराख खुदावंद है, वो अजीम खुदावंद, उसका दिल खुला हुआ है, उसके दिल के दरवाजे खुले हुए हैं। जैसा कि वो दस्तक देता है हमारे दिलों में कि वो अंदर आए, हमारे साथ रफाकत करे, उसका दिल भी हमारे लिए खुला हुआ है कि हम दस्तक दें और कहें ऐ खुदावंद तू मुझ पर रहम कर। निनवा के लोगों ने बिल्कुल वैसे ही किया। हालांकि उनको नहीं कहा गया कि तौबा कर, अपने गुनाहों से बच जाओ, बल्कि उनको यह कहा गया कि बस तुम भस्म हो जाओगे, तुम्हारा तो बेड़ा ही गर्क है, बेड़ा ही गर्क है। मगर निनवा के लोग पछताए और जिसको खुदावन ने भेजा था मनादी करने के लिए उसको गुस्सा आया। लेकिन यूना इससे बहुत निहायत नाखुश और नाराज हुए। न सिर्फ नाखुश बल्कि नाराज भी हुए और उसने खुदावन से यूं दुआ की कि ऐ खुदावन, जब मैं अपने वतन ही में था और तरसीस को भागने वाला था तो क्या मैंने यही नहीं कहा था? मैं जानता था कि तू रहीम और करीम, ये मानता भी है, मैं जानता था कि तू रहीम और करीम खुदा है जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। यूनुस खुद ये इकरार करता है कि भाई खुदावन, दूसरे अल्फाज में यूनुस ये कहता है खुदा से, ऐ खुदावन मैं नहीं चाहता कि तू रहीम बने, मैं नहीं चाहता कि तू करीम हो, मैं नहीं चाहता कि तू कहर में धीमा हो, बल्कि हमेशा ही कहर में हो। बस सोचने की बात है, अगर खुदावन हमेशा कहर ही में हो तो ये दुनिया रहेगी ही नहीं, सारे के सारे मर जाएंगे एकदम में। मगर खुदावन कहर में धीमा और शफकत में गनी है और वो कहता है कि मैं चाहता ही नहीं कि तू कहर में धीमा हो और मैं नहीं चाहता कि तू शफीक खुदावन बने और उसमें गनी भी हो, और मैं नहीं चाहता कि तू अपने आजाब को नाजिल ना करे लोगों पर, हमेशा नाजिल करता रहे। तो ये बद्दुआ ही है, ये दुआ नहीं बल्कि ये बद दुआ है दर हकीकत में। अगर हम किसी की बुराई चाहते हैं और चाहते हैं कि ऐ खुदावन तू इन लोगों को तबाह व बर्बाद कर, तो ये हम उनकी बुराई चाहते हैं। एक गीत सुनेंगे, गीत के बाद वापस लौटेंगे।
हो आहा हा हा। यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। हाँ, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। हो जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। दिन ढल जाएंगी, आएंगी रातें, बतलानी होगी जीवन की बातें। दिन ढल जाएंगी, आएंगी रातें, बतलानी होगी जीवन की बातें। मुझे बताने दो, हाँ, यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। हो जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। पापों में दुनिया डूब रही थी, मौत के दर पे आके खड़ी थी। पापों में दुनिया डूब रही थी, मौत के दर पे आके खड़ी थी। मुझे बचाने दे, हो यीशु मुझे बुला रहा है, जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। हो जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। आमीन। जाऊंगा मैं उसके पीछे पीछे। तो यूनुस नबी जो है वो सुधरे नहीं। इतने खुदावन शफीक को, रहीम को और मेहरबान को जानकर भी वो सुधरे नहीं। हाँ, वो तरसीस को भाग रहे थे। खुदावन ने उसे मछली के पेट में एक पनाहगाह दी और वहाँ पर दुआ की और वो बच गए। सबसे पहले तो समुंदर के लहरों से खुदावन ने उसे बचाया, फिर कश्ती में खुदावन ने उसको बचाया, उसके बाद समुंदर के लहरों में, फिर मछली के पेट में, फिर रास्ते में निनवा तक, फिर निनवा शहर में भी वो एक यहूदी होकर यहाँ पर वहाँ पर चिल्लाते रहे कि तुम सब मारे जाओगे। फिर भी खुदावन ने उसको बचाता रहा। और फिर जब खुदावन ने निनवा के लोगों को बचाया, और किसको गुस्सा आया? मनादी करने वाले को गुस्सा आया, मुबश्शिर को गुस्सा आया, बशारत देने वाले, खुशखबरी सुनाने वाले के खुदावंद रहीम है, खुदावंद शफीक है, खुदावंद मेहरबान है, खुदावंद मोहब्बत रखने वाला है। हाँ, खुदावंद आदिल भी है और वो उसका कहर तुम पर आने वाला है, मगर अगर तुम तौबा करो तो तुम बच जाओगे। यूनानो ये नहीं कहा। और जब खुदावन ने फिर भी उन लोगों को बचाया, क्योंकि वो लोग पछताए अपने, वो तौबा करे और तौबा करके उन्होंने टाट अपने ऊपर ओढ़े और बादशाह ने खाकिस्तर अपने ऊपर फेंक दिया, रोजे रखे, खुदावन ने उनकी सुनी और वो बच गए। यही है खुदावन का मकसद और मतलब हमारे लिए। हम सब गुनहगार हैं और सब के सब जहन्नुमी हैं,
مگر خداوند ہمیں بچاتا ہے جب ہم اس کے حضور آتے ہیں، توبہ کرتے ہیں اپنے گناہوں سے، اے خداوند تو مجھے معاف کر۔ تو خداوند ہمیں بچاتا ہے، خداوند ہمیں بچاتا ہے۔ لیکن یونا اس سب سے نہایت، صرف ناخوش ہی نہیں، نہایت ناخوش اور ناراض ہوا، اور اس نے خداوند سے یوں دعا کی کہ اے خداوند جب میں اپنے وطن ہی میں تھا، اپنے وطن میں، کون سا وطن تیرا بھائی؟ وہ بھی خداوند کا ہے، یہ بھی خداوند کا ہے، خداوند کی بخشش ہے۔ ہم بخیل ہوتے ہیں جب خداوند کسی اور کو دیتا ہے، بس ہم چاہتے ہیں کہ خداوند سارے کے سارے جو امتیازات ہیں، سارے کے سارے جو برکات ہیں وہ ہم ہی کو دے، دوسرے گئے بھاڑ میں۔ یہ ہے ہماری سوچ۔ اے خداوند جب میں اپنے ہی وطن میں تھا اور ترسیس کو بھاگنے والا تھا تو کیا میں نے یہی نہیں کہا تھا کہ میں جانتا تھا کہ تو رحیم خداوند ہے، میں جانتا تھا کہ تو رحیم اور کریم خدا ہے، جو قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہے اور عذاب نازل کرنے سے باز رہتا ہے۔ اب اے خداوند جب تو یہ سب کچھ ہے، میں تو نہیں چاہتا کہ تو رحیم ہو، شفیق ہو، مہربان ہو، قہر میں دھیما ہو، یہ میں نہیں چاہتا۔ ہاں اپنے لیے چاہتا ہوں، اپنے لوگوں کے لیے چاہتا ہوں، مگر ان کے لیے، نینوا کے لوگوں کے لیے، یہ ان کے یہ لائق ہی نہیں ہے۔ یہ تو بہت ہی گنہگار لوگ۔ میرے ہاتھ میں، میرے ماتھے پر ہمیشہ تیری قوانین ہے، میرے بازو میں ہمیشہ تعویذ لے کر میں نے تیرے کلام کو رکھا ہوا ہے۔ میں تو دن رات یوں کرتا ہوں اور پڑھتا رہتا ہوں تورات کو۔ بھائی صرف میں ہی لائق ہوں، میرے لوگ ہی لائق ہیں، یہ لوگ لائق نہیں ہیں۔ میں تو جانتا تھا کہ تو رحیم ہے، مگر میں نہیں چاہتا تھا کہ تو ان پر رحیم بنے، ان پر شفیق بنے، ان پر مہربان بنے، ان پر اپنی محبت جاری رکھے اور اپنا فضل ان پر جاری رکھے۔ اب اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، میں تیری منت کرتا ہوں، تیرے پاؤں پڑتا ہوں، میری جان لے لے، کیونکہ یہ مجھ سے نہیں رہا جاتا کہ آپ نے ان لوگوں کو بخشا، یہ مجھ سے نہیں رہا جاتا۔ کیسے آپ نے ان کو بچایا؟ بس یہ میری بس کی بات نہیں ہے، میرے چھوٹے سے دماغ میں یہ بستا ہی نہیں ہے کہ تو کیسا شفیق ہو سکتا ہے ان دوسروں کے لیے بھی۔ میں تو چاہتا ہوں کہ بس میرے لیے اور میرے قوم کے لیے شفیق، رحیم اور مہربان اور محبت رکھنے والا اور فضل رکھنے والا خداوند بن، دوسروں کے لیے نہیں، اور نینوا کے لوگوں کے لیے تو بالکل ہی نہیں۔ میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان لے لے، کیونکہ میرے اس جینے سے مر جانا بہتر ہے۔ ہائے 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 یونس، ہائے ہائے یونس، ہائے ہائے یونس۔ یہ ہے یونس کی کہانی، یونس کا دل، ایک پرچارک یا ایک مبشر، ایک منادی کرنے والے کا دل انسانوں کے لیے۔ اس کے برعکس خداوند کیا چاہتا ہے؟ خداوند کی رضا کیا ہے؟ خداوند کا دل انسانوں کے لیے کیسا ہے؟ چاہے وہ کتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہو، کتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہو، خداوند کا دل کیسے ہے؟ جب اسامہ بن لادن ہلاک ہوا اور امریکی فورسز آ کر ان کو مار ڈالا، تو میرے ہی کلیسیا میں یہاں پر امریکہ میں تو اس نے کہا کیا آپ کیا سوچتے ہو؟ اسامہ بن لادن بہت ہی خطرناک انسان، بہت ہی کرمنل، بہت ہی بڑا کرمنل، اس نے تو یوں کیا، وہ کیا، یہ کیا، کیا آپ کو بہت خوشی ہے؟ ایک سکول میں تھا میں اس وقت، اور وہاں پر میں ہمیشہ وہ مجھے بلاتے تھے اور میں خداوند کے کلام سے بچوں میں جو سٹوڈنٹس تھے، وہاں پر طالب علم تھے، پہلی جماعت سے لے کر 12 جماعت تک کے، بہت یہ ایک بڑی سکول، اکثر مجھے وہ بلاتے تھے۔ تو میں نے اس بہن سے کہا کہ کتاب مقدس کیا فرماتا ہے اس کے بارے میں؟ تو وہ سوچنے لگی، اور پھر اس وقت میں نے یہ آیت ان کو دی۔ یہ ہے وہ آیت جو سب مسیحیوں کے لیے لازمی ہے کہ ہم اس آیت کو جانیں اور سمجھیں، اور خداوند کا قلب لوگوں کے لیے، ہاں یہاں تک کہ اسامہ بن لادن کے
तरह लोगों के लिए हमारा कल्ब कैसी होनी चाहिए, ये देखें। इसलिए ए आदमज़ाद, तू बनी इसराइल से कह कि तुम यूं कहते हो कि फिल हकीकत हमारी खताएं और हमारे गुनाह हम पर हैं और हम उनमें घुलते रहते हैं, बस हम क्यों कर जिंदा रहेंगे। तू उनसे कह, खुदावन खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, मुझे अपनी हयात की कसम, खुदावन किसी और पर नहीं अपनी ही हयात पर कसम खाकर ये कहता है, मुझे अपनी हयात की कसम, शरीर के मरने में मुझे कुछ खुशी नहीं, बल्कि इसमें है कि शरीर अपनी राह से बाज आए, अपनी शरारत से बाज आए, अपनी गुनाह से बाज आए और जिंदा रहे, और जिंदा रहे। ये देखें आप आयात, इसको याद रखें। इज़ेकियल उसके 33 बाब और 11 आयत को आप अपने दिलो दिमाग में समाये रखें हमेशा। मसीही की हैसियत से हमारे लिए लाजमी है कि इस आयत को और ऐसे ही आयत को हम हमेशा ज़हन नशीन करें कि खुदावन क्या चाहता है, क्योंकि सब ने गुनाह किया है और खुदा के जलाल से महरूम है। सब के सब जो है वो नबूकदनज़र बन सकते हैं, सब के सब उसामा बिन लादेन बन सकते हैं, सब के सब व्लादिमीर पुतिन बन सकते हैं, सब के सब ये बन सकते हैं। और लाजमी है कि हम इस बात पर ध्यान दें, बहुत ही लाजमी है कि हम इस बात पर ध्यान दें। एक अजीज़ ने टेलीफोन किया और मैं कोशिश करूंगा कि ये टेलीफोन ले लूं, और लाजमी है कि हम इस बात पर सोचें। अजीज़ भाई, आप अगर फिर से टेलीफोन करें तो मेहरबानी होगी। मैं माज़रत चाहता हूं, आपका टेलीफोन नहीं ले सका, इसके लिए माज़रत चाहता हूं। अगर बंदिश हुई है तो आप दोबारा कोशिश कर सकते हैं। मुझे खुशी होगी कि आपसे सुनूं, आपके ख़यालात सुनूं वग़ैरह। तो ये है वो आयत, और ऐसी बहुत से आयत हैं किताब मुक़द्दस में जिसे हम पढ़ सकते हैं। तू उनसे कह, खुदावन कहता है, वो कहता है तू उनसे कह। ये है वो आयत, मुझे अपनी हयात की कसम, मुझे अपनी हयात की कसम। हेलो, जी हाँ, आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम अजीम है। तो आपका प्रोग्राम हम देखते रहते हैं, तो मेरी वालदा आपसे जो है ना बात करना चाहती हैं। बिल्कुल, ज़रूर मैं उनसे ज़रूर, बिल्कुल। वो बहुत शौक से आपका सर प्रोग्राम देखती हैं, तो बाकायदगी से तो वो कह रही थी कि किसी तरीके आपसे बात हो सकती है। तो मैंने आपका नंबर नोट किया, अभी भी हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, तो मैंने कहा चले मैं आपकी बात करवा देता हूँ। बिल्कुल, आप बात करवाएं माँ जी से। हेलो, करो। हेलो, सलाम भाई। सलाम मेरी बहन, सलाम। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ आपके लिए, और शुक्रिया, आप प्रोग्राम देखते हैं और आपने टेलीफोन किया और ये ख्वाहिश की कि आप बात करें। मेहरबानी से आपका ये वक्त आपका है, फरमाएं। जी भाई, मैं बहुत आपको बहुत दिलों प्यार करनी है, मैं दिलों सारे बच्चे अनवानी है, थोड़ा मामू है, मेरा वीर है मेरा वीरा है। तो मैं बड़ा शौक ना थोड़ा वेनी है, जेड़ा सारा प्रोग्राम में सारे शौक ना वेनी है। उतरा लियो हजारा चो। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र करता हूँ मैं आपके लिए, खुदावन का शुक्रगुजार हूँ आपके लिए, और खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि आप ये प्रोग्राम देखते हैं, और इस प्रोग्राम से खुदावन आपको बरक़ात अता फरमाता है। और मैं आपको तशवीक़ करता हूँ ये प्रोग्राम हमेशा ज़रूर देखें और हमारे लिए भी दुआएं करते रहें। जी, साल तो मैनू आ प्रोग्राम नहीं नजर आया, तो मैं बड़ी परेशान था जो तुहानू किते कोरोना हो गया सी, ते मैं बड़ी दुआ करदी सा। मैं बच्चों नू आनी सा पता करो क्यों नहीं उन्हां दा प्रोग्राम आउण दिया। और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बड़ी खुश है।
मैं सबाटिकल में, याद रखनी है तो हाँ जी, मैं सबाटिकल में था 8-9 महीने मैं सबाटिकल में था, इसलिए मेरे प्रोग्राम नहीं हुए और खुदावन ने मुझे फिर मौका दिया कि मैं फिर अपने प्रोग्राम शुरू करूं और खुदा के कलाम में से बांटूं। बहुत शुक्रिया, फिर भी दुआओं के लिए बहुत शुक्रिया। जी जी, ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਡਏ ਆ, ਯੂਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਹੀ ਵੇਖਣ ਡਏ, ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ। नहीं, ਬੜਾ ਮੈਂ ਵੇਖਨੀ ਆ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ, ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੌਲੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ। हालेलुया हालेलुया, वो हमेशा बचाने वाला खुदावंद है, वो निजात दहिंदा है और मैं शुक्रगुजार हूँ। हाँ, आप अगर रिपीट्स भी देखें तो उसका भी शुक्रिया, मगर हर बुधवार को इसी वक्त मेरा प्रोग्राम हमेशा बराह रास्त होता है और अगर आप टेलीफ़ोन करें या दुआ की दरख्वास्त है तो मैं ज़रूर दुआ करूँगा और मैं दुआ करूँगा कि खुदावंद आपके सारे घराने को बरकत दे और अमराज से और मुश्किलात से आपको महफूज रखे और आपको अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल करे। मेरी ये दुआ है। जी 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 जी, बेशक बेशक, शुक्र है खुदावंद ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਕਾਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵੇਖਨੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਵਰ ਫਜ਼ਲ ਦਾ ਇਬਾਦਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ 5-6 ਵਜੇ, ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ प्रोग्राम ज्यों लगता है तो फिर यही ऐसी वेने हैं। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र कि आप भाई अनवर के प्रोग्राम को देखते हैं और इस प्रोग्राम को देखते हैं और मैं आपको तशवीश करता हूं कि इन प्रोग्रामों को ज़रूर देखें ज़िंदगी टीवी की वसातत से। बहुत शुक्रिया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, खुदा दा शुक्र है जी, बहुत शुक्रिया। दुआ करो मेरे लिए, ज़रूर नवी जिंदगी दी है जी, ज़रूर ज़रूर। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ अपनी बहन के लिए, दुआ करता हूँ कि तू अपने दस्ते रहमत को इन पर रख, बहन पर और उनके घर वालों पर, उनके बच्चों पर रख। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि तू उनको हमेशा सेहतमंद रख और शुक्रगुजार हूँ कि तूने उन्हें बचाया मुश्किलात से, अमराज से। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि अपनी जलाल के लिए इनको इस्तेमाल कर, कि ये गवाही रहे लोगों के लिए कि खुदावन हमारा खुदा वो हमारी शफात करने वाला खुदावंद है, वो शफकत भरा खुदावंद है और वो डॉक्टरों का डॉक्टर है। खुदावंद, मैं इनको खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम के सुपुर्द करता हूँ और दुआ करता हूँ खुदावंद बाप के जलाल के लिए। आमीन 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 आमीन। भाई बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया और खुदावंद आपको भी बरकत दे। बहुत शुक्रिया टेलीफोन करने का। खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूँ इनके लिए और शुक्रगुजार हूँ कि लोग सुनते हैं इन प्रोग्राम को और उनको अच्छा लगता है, बरक़ात मिलती हैं उनको, और इसलिए मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस आयत पर गौर करें मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, आप चाहे मसीही हैं गैर मसीही हैं, देखें हमारा खुदावन कहता क्या है। वो नहीं चाहता कि शरीर, हालांकि हत्ता के शरीर जैसे कि उसामा बिन लादेन हो, जैसे कि पुतिन हो, जैसे कि यहाँ तक कि हिटलर हो, बहुत से ख़तरनाक लोग, सारे के सारे इंसान हैं, वो सारे के सारे गुनाह में हैं। हम सब वही गुनाह कर सकते हैं जो हिटलर ने किया, जो पुतिन कर रहे हैं और जो दूसरे लोग उसामा बिन लादेन ने किया। सब ये गुनाह कर सकते हैं, ये जराइम हम कर सकते, क्योंकि हम गुनहगार हैं। मगर खुदावन क्या कहता है? खुदावन कहता तू उनसे कह, खुदा फरमाता है मुझे अपनी हयात की कसम, शरीर के मरने में मुझे कुछ खुशी नहीं, बल्कि इसमें है कि शरीर अपनी राह से बाज आए और जिंदा रहे, और जिंदा रहे। खुदावन जो है वो यूनुस की तरह नहीं सोचता। यूनुस समझते हुए भी, जानते हुए भी कि खुदावन क्या है, ये देखें। ऐ खुदावन, जब मैं अपने वतन में ही था और मैं भाग रहा था तरसीस को, मैंने ये नहीं कहा था कि मैं जानता था, ये उसको जानकारी भी पूरी थी कि खुदावन क्या है, रहीम व करीम है।
खुदावन क्या है? कहर करने में धीमा है। खुदावन क्या है? वो शफकत में गनी है। क्या है? अजाब नाजिल करने से बाज रहता है। जानते हुए भी वो ये कहता है कि बस मेरे बात की ये नहीं है कि तू कैसे कैसे इन लोगों के लिए शफीक है, इन लोगों के लिए मेहरबान है और मोहब्बत रखता है और फजल जारी करता है और उनको बचाता है। मुझसे नहीं रहा जाता, बस मैं मरने जा रहा हूं, बस मुझे भी मार डाल। ये है इंसानी फितरत और हैसियत। अगले प्रोग्राम में इस पर हम ज़्यादा बात करेंगे कि खुदावन हमारे लिए चाहता क्या है। हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया है? हेलो हेलो, हाँ हम सुन रहे हैं बहन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी बहन। हेलो इस्लाम भाई जी। सलाम मेरी बहन, सलाम। हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। आप टीवी की आवाज़ को कम करें, टीवी की आवाज़ को कम करें क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पर आवाज़ आ रही है। आप बराह रास्त मुझसे मुखातिब हों और आपकी आवाज़ जा रही है, मेहरबानी करके बात करें। हेलो, हाँ मैं सुन रहा हूँ बहन। नारोवाल से, पाकिस्तान से बोल रहे हैं। हाँ बहन, नारोवाल से हूँ मैं परवीन। आप भाई हसनैन का इंद्रियास का मैसेज सुन रहे हैं? बहुत अच्छा प्रोग्राम है। मैं अंदरियास हूँ और मैं सुन रहा हूँ इसी वक्त आपकी आवाज़ में सुन रहा हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने फ़ोन किया है। और आप अगर कुछ आपका कोई अगर सवाल है या कोई ख्वाहिश है, बराए मेहरबानी फरमाएं। मेरे हस्बैंड से बात करें। ज़रूर ज़रूर। सलाम भाई। आप कौन है भाई? मैं सरदार ज्ञान हूँ, नारोवाल से बोल। भाई सरदार, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, खुदा का शुक्र है। आपसे बहुत अच्छे लगते हैं जब आप बात करते हैं, खासकर पश्तो में जब आप गाते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आप दुआ करें कि ये रूस और इसकी जंग जो है, ये यूक्रेन की जंग रुक जाए। ज़रूर, मैं दुआ करता रहता हूँ। मैंने कल अपने हम हमेशा दुआ करते रहते हैं, दुआ करते हैं कि खुदावन लोगों को बचाए। खुदावन जो है वो इस बंदे को, पुतिन को हलीम बनाए और रहीम बनाए, ताकि वो अपने इस बदकिरदारी से, अपने इन शूम अज़ाइम से बाज रहे और लोग बचते रहें। मैं हमेशा दुआ करता हूँ मेरे भाई। बहुत शुक्रिया टेलीफोन करने का, और बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी शफ़क़त को यहाँ पर खुदावन यीशु मसीह में दिखाया है लोगों के लिए, कि आप लोगों के लिए बहुत ही मोहब्बत रखते हैं उनसे और शफ़ीक हैं। मसीह को ऐसी ही होनी चाहिए, हमें अपनी नहीं बल्कि लोगों की सोचनी चाहिए। बहुत शुक्रिया इसके लिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, और खुदावन आपको भी बरकत दे, आपके घराने को बरकत दे। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन आपको अपनी जलाल के लिए इस्तेमाल करे और आपको महफूज रखे। आमीन आमीन। बहुत अच्छे हैं। खुदा बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया देखने का मेरी बहन, बहुत शुक्रिया। बहुत पसंद करते हैं। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत थैंक यू वेरी मच। इसी तरह से मुलाकात होती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बहन, खुदावन आपको बरकत दे। बहुत शुक्रिया। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ कि लोग प्रोग्राम्स को देखते हैं और लोगों को एक दर्द है दूसरे लोगों के लिए। हम सारे के सारे हमसाए हैं एक दूसरे के लिए, सारे के सारी इंसानियत जो है हम हमसाए हैं। अगर एक को दर्द होता है तो सबको दर्द होता है, सबको दर्द होता है। तो हमें दुआ करनी चाहिए। और इससे पहले कि मैं कुछ कमेंट्स को पढ़ूं, मैं दुआ करना चाहता हूं, क्योंकि बहुत से अजीज़ों ने दुआ के लिए कांटेक्ट की है। खुदावन, मैं दुआ करता हूं जो मसला है यूक्रेन में, खुदावन तू उन पर रहम फरमा। खुदावन दुआ करते हैं कि ये जंग बंद हो और लोग पछताएं, तौबा करें। बिलखुसूस पुतिन
सदर पुतिन तौबा करें, अपने इस जो बद अज़ाइम हैं उनसे तौबा करें और खुदावन के हुजूर गिड़गिड़ाएं। जैसे कि निनवा के बादशाह ने तौबा की, वैसे ही पुतिन भी तौबा करें। और दूसरे जो रहबरान हैं, अगर वो उनकी सोच ऐसे हैं तो वो भी तौबा करें और खुदा के खौफ में रहें और डरें खुदा से। ऐ खुदावन तू रहम फरमा लोगों पर, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से, आमीन आमीन आमीन। आतिया बहन कहती हैं स्टे ब्लेस्ड। इमरान भट्टी प्रेज द लॉर्ड कहते हैं और आमीन कहते हैं। और बहुत से और भी कमेंट्स हैं जो मैं यहाँ पर पढ़ना चाहता हूँ। भाई नेमत मसीह ने ओके किया हुआ है। और फैसल भाई लिखते हैं खुदावन की मोहब्बत और सलामती आपके साथ हो, आपके भी खुदावन मेरे भाई यीशु हमें संभाले हुए हैं, आमीन आमीन। रोज़ाना अपने गुनाहों और ख़ताओं का एतराफ़ अपने भाइयों से करते रहें, जिसका गुनाह हमने किया हो, यही खुदा की मर्जी है। ऐसा ना हो कि मुद्दाई मुनसिफ के हवाले करे, आमीन। बिल्कुल ये लाजमी है, ये हमारे लिए यीशु ने ज़माने के हकीरों को चुन लिया। बिल्कुल बिल्कुल, हलाक से बढ़कर इसकी मोहब्बत है, हलाकत से बढ़कर उसकी मोहब्बत है। बिल्कुल हलाकत से बढ़कर उसकी मोहब्बत है। यही तो हिज़कियल में हम पढ़ते हैं, खुदावन की मर्ज़ी जो हमारे लिए है। इसी वजह से तो हम पढ़ते हैं कि वो नहीं चाहता इंसान के लिए हलाकत, बल्कि वो चाहता है कि इंसान बचे अपने गुनाहों से। और यूनुस भाई फूल भेज रहे हैं, बहुत शुक्रिया। और महमूद सोतरा भी मोहब्बत भेज रहे हैं और खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब भाइयों और बहनों के लिए। और जी के स्मार्टी कहते हैं क्वेश्चन कहाँ करना है? भाई क्वेश्चन आप यहीं पर भी कर सकते हैं, टेलीफोन करके। ये व्हाट्सएप का नंबर यहाँ पर है, इसमें भी आप कॉल करके क्वेश्चन कर सकते हैं। जी के स्मार्टी साहब, खुदावन आपको बरकत दे। मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता है और उसकी राहों पर चलता है, आमीन। और सैजदे अली घर बैठे वीज़ा अप्लाई करें बस इनको यही कोई और कारोबार इनको है नहीं, वो बस घर में बैठे वीज़ा अप्लाई करें। चलो चलें शारजा चलें, चलो दुबई चलें, और वहाँ पर जाकर भी आपका मामला हल नहीं होगा। आपका मामला सिर्फ उसी वक्त हल होगा कि आप खुदावन के हुजूर आएँ और सच्चे दिल से तौबा करें और खुदावन यीशु मसीह को अपने दिल में जगह दें, अपने दिल में जगह दें। देखें खुदावन का जो रवैया है इंसान के लिए, हालांकि हमने यहाँ पर पढ़ा यूनुस नबी, वो उसको गुस्सा आया कि क्यों खुदावन ने निनवा के लोगों के इतने बड़े बड़े बदकारों को खुदावन ने कैसे बचाया और उनकी तौबा कबूल कर ली और उनको निजात बख्शा वगैरह। उनको बहुत गुस्सा आया और उसने ये कहा कि भाई मैं तो जानता ही था कि तू कैसा खुदावंद है, तू रहीम है, करीम है, कहर में धीमा है, शफकत में गनी है और अज़ाब नाजिल करने से बाज रहता है। क्योंकि वो बैठा था कि देखे कि अब देखो खुदावंद क्या करता है, बम बरसाता है और जो मीडियोराइट जिसे कहते हैं, पत्थर और जो बर्फ़ हैं ऊपर से वो फेंकेगा, बस इनको ख़त्म करने वाला है। मगर उनको ये मालूम नहीं था कि खुदावन है क्या। तब खुदावन ने फरमाया क्या तू ऐसा नाराज़ है? फिर भी वो बाज नहीं आया, फिर भी वो बैठकर आराम करके ये सोचने लगा कि अब की बारी, अब जैसा कि मैंने दुआ किया, भाई मैं मरना चाहता हूं। भाई यूनुस और भाई क्या आप कोई भी हैं खुदा के खादिम? अगर आप ये सोचते हैं कि सिर्फ आप ही खुदा के खादिम हैं, खुदावन यूनुस की जगह किसी और को भी भेज सकता था। पुराने ज़माने में खुदावन ने गधे का मुंह खोलकर इंसान से बात की, इंसान को समझाया कि सुधर जा बंदा। खुदावन आज भी वो कर सके। खुदावन कव्वे को भेजकर रोजी
ले जाता पहुंचाता है। खुदावन जो है मछली के पेट में इंसान को 3 दिन रात वहाँ पर जिंदा रख सकता है और वहाँ से भी खुदावन हमारी सुन सकता है। मगर हम हैं कि खुदावन से भाग रहे हैं, हम हैं कि खुदावन की शफकत से भाग रहे हैं। तो लाजमी है कि हम तौबा करें अपने गुनाहों से, तौबा करें अपने गुनाहों से। लाजमी है हमारे लिए कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें, क्योंकि खुदावन यही चाहता है कि हम अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदावन की तरफ लौटें, क्योंकि खुदावन चाहता है कि हम उसकी तरफ लौटें। यहाँ पर और भी कमेंट्स हैं जो यहाँ पर कंप्यूटर में नहीं आ रहे, मगर दाऊद गिल आप मसीह लिखा हुआ, आप मसीह खुदावन के अजीम खादिम हैं। आपका प्रोग्राम देखकर हमारा ईमान ताज़ा होता है और इससे तन्हा माफ़ करेंगे फिर जाता रहा और तन्हा खुदा आपको आपके लिए इस्तेमाल करे अपने लिए। हमारी पूरी मम्मी पापा हर वक्त आपका प्रोग्राम देखता है। तो मैं यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि क्योंकि ये स्क्रीन पर नहीं आ रहा, मगर यहाँ पर आप इसका पैगाम ज़रूर पढ़ें और देखें, क्योंकि स्क्रीन पर नहीं आ रहा। और भाई राहिद भी, भाई रशीद लाइट भी आमीन कहते हैं और फूल भेज रहे हैं और तशवीक़ कर रहे हैं। मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ आपके पैगामात का, और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन आप सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। और दुआ करता हूँ कि जिन लोगों ने खुदावन का पैगाम आज इस प्रोग्राम की वसातत से सुना है, तो मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन उनके दिलों को छुए और वो लौटें खुदावन की तरफ, क्योंकि हम सब गुनहगार हैं। इतनी सी दुआ करके आए, खुदावन मैं इकरार करता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ और तू ज़िंदा खुदावन है और मेरे गुनाहों का किफ़ारा सलीब पर दिया। मेरे दिल में आ मेरा खुदावन और मुंजी बन और मुझे मुआफ़ कर, गुनाहों से मैं तौबा करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के नाम से, आमीन। खुदावन आप सबको बरकत दे, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से, आमीन।